Hello students, welcome to your maths class. I am Poonam Bagga and we are studying class 8th maths, chapter 8, comparing quantities. In our previous video, we learned to find percent increase, percent decrease. We also learnt about discounts, profit and loss, and about taxes included in the billing amount of the items that we purchase. Today we will be doing the first 6 questions of exercise 8.2 based on all this. Before we start, let us recall that percent increase or percent decrease is calculated over the original value, the value which is in the beginning of the situation, and after increase or decrease we get the next value. तो जो वैल्यू पहले रहती है सिचुएशन में उसी के बेसिस पे तो पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है. सो percent increase or percent decrease is calculated over the original value. Then discount percentage is calculated over the marked price of the item. The price which is labelled on the item, it is its marked price, and on the basis of this we calculate the discount percent. कितने percent छूट मिल रही है. Okay. Then profit percent or loss percent is calculated over the cost price of the item. The price in which we purchase an item, it is its cost price, and on this price we calculate percent profit or percent loss. Then taxes are calculated over the selling price of the item. So I hope all this is clear to you, and all these quantities are related to many real life situations. You will see that in practical life, as we do some transactions, these quantities are used one or the other time. So be perfect in these quantities as we do these questions, and keep your pen and paper ready. We begin with the first question of exercise 8.2. Here it is. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. So here we are talking about the salary of a person, and this salary is being increased by 10%. And then the new salary that has been given, it is rupees 1,54,000. और यहाँ हमें ये ओरिजिनल सैलरी कितनी थी ये नहीं पता है और यही पता करना है. नाउ दिस परसेंट इंक्रीज इन द सैलरी, इट विल बी कैलकुलेटेड ओवर द ओरिजिनल वैल्यू जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है. और ओरिजिनल सैलरी तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे 10% निकालेंगे. So here we will have to assume some value for this original salary. इसके लिए कोई value assume करनी होगी और तब उसका 10% find out करेंगे और फिर इस new salary तक पहुँचेंगे. So let us assume the old salary to be rupees X. Then how to proceed? We write it here. Let the original salary be rupees X. Then increase in salary. It is 10% of the original salary. So 10% of X. How to find it? 10% means 10 upon 100. Of के लिए लिखेंगे into X. Cancel this 0. This will be rupees X upon 10. Now, the new salary, it will be obtained by adding this old salary. जो पहले मिल रही थी वो तो अभी भी मिलेगी और साथ ही साथ ये increased salary भी मिलेगी X upon 10. अब ये हो गई total new salary और according to the question it is equal to rupees 1,54,000. Now we need to solve this. कैसे करेंगे? 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 10x प्लस x अपॉन 10 इक्वल टू 1,54,000. तो यहाँ हमने 10 को LCM ले लिया है और इस तरह से यहाँ हमें मिलेगा 10x plus x, it will be 11x upon 10 equal to 1,54,000. Now we need to find the value of x. तो x को separate कर लेते हैं. 1,54,000 it will be in the RHS, and now we will be transposing 11 and 10 to the RHS. कैसे जाएंगे? 10 यहाँ division में है तो RHS में ये हो जाएगा multiply में, और 11 यहाँ multiplication में है तो RHS में हो जाएगा division में. Now divide by 11, 11 ones are, here we have 11 ones are 11, 4 will be left, 44, 4 times, then we have 3 zeros. 14,000 into 10, this will be 1,40,000.
and this is the original salary of the person. So we can write here the original salary is rupees 1,40,000. Now here we solved this question by assuming the original salary to be rupees x. एक और मेथड है जहां हम प्रीवियस सैलरी को रुपीज़ 100 मानकर चलते हुए चलेंगे, रुपीज़ 100, और फिर हम कैसे प्रोसीड करते हैं उस मेथड को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. वी बिगिन हियर. लेट द ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज़ 100. देन इंक्रीज इन सैलरी, इट इज़ 10% ऑफ प्रीवियस सैलरी विच इज़ 100. तो आप देखिए 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा. इट विल बी 10 अपॉन 100 into 100 and cancel this, you will get it equal to 10. तो increase in salary it is rupees 10. Obviously 10% means out of 100, और हमने तो previous salary मानी ही 100 है, तो obviously it will be only rupees 10. Now new salary, it will be sum of this original salary plus this increase. So इनको add करेंगे, it will be rupees 110. Now we have two values for this new salary. This is rupees 110 out of the previous salary which is rupees 100, और एक और वैल्यू है rupees 1,54,000 जो हमें क्वेश्चन में दी है. दोनों ही वैल्यूज़ न्यू सैलरी की हैं. तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें हेल्प करेगी ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करने में. और वो कैसे, देखिए आप. इफ़ न्यू सैलरी इज़ रुपीज़ 110 देन ओरिजिनल सैलरी इज़ रुपीज़ 100. यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे. If new salary is rupees 1, then the original salary it will be equal to rupees 100 upon 110. यहाँ क्या किया हमने, 110 है जब न्यू सैलरी, तो प्रीवियस सैलरी हो गई रुपीज़ 100, और जब न्यू सैलरी है रुपीज़ 1 तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे. 1 यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 100 में 110 को डिवाइड कर दिया है. Now if new salary is rupees 1,54,000, then the original salary will be rupees 100 upon 110 into 1,54,000. देखिए 1 यूनिट की वैल्यू के लिए डिवाइड करते हैं, और ये हो गई मेनी यूनिट्स. मेनी यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और वही हम कर रहे हैं. यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर आप 11 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 14 एंड 2 zeros. नाउ मल्टीप्लाई, इट विल बी रुपीज़ 1,40,000, द सेम आंसर. तो यहाँ हमने क्या किया उसको एक बार फिर से देखते हैं. जब हमारी नई सैलरी है 110, तो प्रीवियस सैलरी है 100. अब हम यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 होगी जब न्यू सैलरी, तो ओल्ड सैलरी कितनी हो गई, 100 अपॉन 110. और जब ये हो गई मेनी यूनिट्स, 1,54,000 हो गई नई सैलरी, तो प्रीवियस सैलरी हो गई 100 अपॉन 110 इंटू 1,54,000. एक के लिए डिवाइड कर रहे हैं और मेनी के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आई होप यू आर कनेक्टिंग इट. और ये मेथड कहलाता है यूनिटरी मेथड, क्योंकि यहाँ हम पहले यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं. इट्स मेथड. Okay, this is another method to get the answer. I hope you are familiar with both the methods now, and it is up to you to choose any one of the methods. Okay, next we have question 2. On Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो यहाँ आप देखिए संडे को तो 845 people जा रहे हैं जू को देखने, लेकिन मंडे को सिर्फ 169 लोग ही जा रहे हैं जू देखने. तो डिक्लाइन हो गया ना, एक डिक्रीज हो रहा है, और ये पूछा है कि कितना % डिक्रीज है. सो वी बिगिन. नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑन संडे इट इज इक्वल टू 845 एंड ऑन मंडे इट इज 169. तो कितना डिक्रीज हो रहा है, लेट अस राइट हियर. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू, इट विल बी 845 minus 169. How much it is? 15 minus 9, it's 6. 3. 13 minus 6, it's 7. And here we have 6 again.
So 676, this is the decrease in the number of people visiting the zoo on Monday. Now we need to find the percent decrease. इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था और हमें पता है कि percent decrease is always calculated over the original value. पहले वाली वैल्यू को कंपेयर करके ही तो हमें पता चलता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर हम सिर्फ ये बोलें कि मंडे को 169 लोग आए जू देखने, तो इससे हमें कंपैरिजन नहीं पता चल पा रहा कि कम हुए या ज़्यादा. जब हम संडे की वैल्यू भी बताते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, तभी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. इसलिए वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड हियर डिक्रीज इज 676 एंड ओरिजिनल वैल्यू इट इज 845 into 100. Now 845 and 100, we can divide both these numbers by 5. Let us divide. 5 2s are 10 and 0. 5 1s are 5, 34 will be there. Then 6 are 30, 45, it will be 9 times. 169, this is 13 square. तो क्यों ना हम दोनों को 13 से डिवाइड करके देखें, क्या पता आंसर आ ही जाए. 13 13s are 169 and 67, it will go by 5 times. 13 5s are 65. Then 2 will be left, 26, and 13 2s are, it's 26. So 52 will be here. Again 13 1s are 13 and this will go 4 times. Here we have 4 into 20 and this is equal to 80%. So how much is the decrease percentage? It is 80%. We can write the final answer. Decrease percentage is equal to 80%. I hope it's clear. It's an easy one. Next we have question 3. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. So there are 80 articles और shopkeeper इनको purchase कर रहे हैं rupees 2400. यहाँ पर each word नहीं लिखा है. ऐसा नहीं लिखा है कि shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 each. इसका मतलब ये जो प्राइस दिया है ये सिंगल आइटम का नहीं है, बल्कि ये सभी 80 आर्टिकल्स का प्राइस दिया हुआ है. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इट इज 80 and the cost price of 80 articles it has been given equal to rupees 2400. Now it has been given he sells these items at a profit of 16%. तो यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना होगा. परसेंटेज दी हुई है, ये तो आउट ऑफ 100 है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा और वो कैसे मिलेगा? इट विल बी 16% ऑफ व्हाट? ऑफ द कॉस्ट प्राइस. हमने अभी बात की थी कि परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर. सो 16% ऑफ द कॉस्ट प्राइस विच इज 2400. दिस विल बी इक्वल टू 16 upon 100 into 2400. Now cancel these zeros. 16 into 24. 16 4s are 64, 6 carried, 16 2s are 32 and 6 it's 38. So the profit is of rupees 384. Let me write here the symbol for rupees also. I hope you can recognize. Now selling price of how many articles we will find first. First we will find the selling price of 80 articles and how much it will be? We will get it by cost price plus profit. जितने में खरीदे थे ये 80 आर्टिकल्स उतने में तो हम बेच ही रहे हैं जो कि है रुपीस 2400. इतने में तो हम सेल आउट कर ही रहे हैं, प्लस हम ये एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं जो कि हमारा प्रॉफिट है और वो है रुपीस 384. दोनों को ऐड कर लेते हैं. यू विल गेट इट एज 84. देन 4 plus 3 it's 7 and 2 rupees 2784. ये तो है selling price of 80 articles. We have been asked to find the selling price of one single article और 1 unit की वैल्यू हमें मिलती है डिवाइड करके. So here selling price of one article it will be equal to rupees 2784 divided by 80. Now we can divide it. Let us divide by 8. Let us see. It will go 10 times and here we will have 27. So 8 3s are 24. We will have 3 left 38. 4s are 32. 6 will be left 64. So 8 times it will go. 348 upon 10.
Now we have one single zero in the denominator. We can easily cut it and get one decimal point here, 34.8. So the selling price of one single article is rupees 34.80. I hope it's complete and clear to you. Next we have one more question. It's question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. Here, one article is being costing rupees 15,500. ये उसका cost है और साथ ही साथ इस पर overhead expense लग रहा है, वो है repairing का rupees 450. तो जब ये article खरीदा जा रहा है तो इतने पैसे तो देने ही होंगे, साथ ही साथ ये पैसे भी तो इसी आर्टिकल पर खर्च हो रहे हैं. तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम. तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ द आर्टिकल इट इज रुपीज 15,500 एंड मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स इट इज इक्वल टू रुपीज 450. तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आर्टिकल का, दोनों को ऐड करेंगे. इट विल बी 50 हियर 9 15 हियर वी विल हैव रुपीज 15,950. ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल का. ये तो उसका परचेजिंग कॉस्ट और ये साथ में रिपेयरिंग कॉस्ट. तो कुल मिलाकर तो कितने रुपए का पड़ा ये आर्टिकल, इतने रुपए का. ठीक है. नेक्स्ट वी विल फाइंड द प्रॉफिट. इट हैज बीन गिवन. नाउ दिस आर्टिकल इज बीइंग सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 15%. तो 100 में से 15 और एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे. इट विल बी 15% ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस, और वो है यहाँ पर 15,950. तो इसका 15% निकालेंगे. 15 अपॉन 100 इंटू 15,950. कैंसल दिस 0. नाउ वी कैन डिवाइड बाय 5. 5 3s are 15, 5 2s are 10. Multiply this by 3. We will get it 3 5s are 15, 1 carried, 3 9s are 27 and 1 28, 2 carried 15, then 16 17, 1 carried, it will be 4, and here we have 2 in the denominator. Let us divide. It will go by 2 times, 3 9 then 2 and then 0.50. This is in rupees. So this is the profit 2392.50. ये तो अभी आया सिर्फ प्रॉफिट. हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल. सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली जितने में खरीदा है उतने में तो हम बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा पैसे भी तो ले रहे हैं हम बेचने में. तो ये हो गया प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. लेट अस राइट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. इट विल बी टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, रुपीज 15,950, और प्रॉफिट कितना है हमारा, रुपीज. देखिए आप, ये डेसिमल में है और ये वाला जो नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है. तो जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि इसमें भी एक पॉइंट लगा लें. कहाँ लगेगा, लास्ट में, वंस प्लेस डिजिट के बाद, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से. ये हो गया. देन 2392 पॉइंट हाउ मच 50, और यहाँ पर भी पॉइंट लगाकर हमने 2 0 लगा दिए. अब हम इनको सिंपली ऐड करेंगे. हियर वी हैव 0.50, 2 9 and 5 it's 14, 1 carried, 9 and 3 12 and 1 13, 1 carried, 5 6 7 8 and 1. This is the selling price of the article. और कैसे ऐड करना है ये समझती हूँ मैं कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. यहाँ बात हो रही है कि एक शॉपकीपर ने पहले VCR और TV दोनों खरीदे. कितने में, दोनों का इंडिविजुअल कॉस्ट है रुपीज 8,000. 8,000 का ही VCR है और 8,000 का ही TV भी है. फिर शॉपकीपर ने इन दोनों आइटम्स को सेल आउट किया, लेकिन VCR को सेल आउट करने पर लॉस हो रहा है 4% का और
टीवी को सेल आउट करने पर प्रॉफिट हो रहा है 8% का। यहाँ हमसे पूछा है कि ये दोनों ट्रांजैक्शंस को मिलाकर ओवरऑल शॉपकीपर को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फिर हमें उसका परसेंट भी निकालना है। वी बिगिन विद द VCR फर्स्ट. ओके, लेट अस राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR. इट इज ₹8,000. देन लॉस, इट इज 4% लॉस, और ये लॉस परसेंटेज किसकी लेंगे हम? ऑब्वियसली ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 8,000. This will be equal to 4/100 into 8,000. Cancel these two zeros. It will be ₹320. ये हो गया लॉस. तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा VCR का? लेट अस राइट सेलिंग प्राइस ऑफ VCR. जितने रुपए में खरीदा था वो तो है 8,000, लेकिन इतने रुपए कम में बेचेंगे तभी तो लॉस हो रहा है. सो वी विल राइट हियर -320. यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला. इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस फॉर दिस selling price. So here we write 8,000 minus 320, 0 and 0, 10 minus 2 it's 8, 9 minus 3 it's 6 and 7. So it's ₹7680. ये हो गया selling price of VCR. Then we go towards the television. The cost price of television, it is again ₹8,000, और टेलीविजन को सेल आउट करने में इस बार हो रहा है प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट. So 8% of what? Obviously of the cost price, and it is 8,000. यहाँ फाइंड आउट करते हैं 8/100 into 8,000. Cancel the two zeros. It is equal to ₹640. 8 into 80 it's 640. और अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस सब्ट्रैक्ट होता है. जितने रुपए में हमने खरीदा था 8,000 रुपीज़ में, उतने में तो हम बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा रुपीज़ भी हम ले रहे हैं. ये है ₹640. सो ओवरऑल द सेलिंग प्राइस विल बी ₹8,640. तो अब हमारे पास टीवी और VCR दोनों का कॉस्ट प्राइस पता है और दोनों का ही सेलिंग प्राइस भी आ गया है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. वी फाइंड हियर द टोटल कॉस्ट प्राइस. इट इज ₹8,000 फॉर VCR प्लस ₹8,000 फॉर टीवी. तो ये हो गया टोटल ₹16,000. नाउ टोटल सेलिंग प्राइस फॉर VCR, इट इज रुपीज हाउ मच? लेट अस सी. 7,680. वी राइट इट हियर 7,680. ये तो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ VCR. फिर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, इट इज ₹8,640. Add both these numbers, you will get it 0. 8 and 4 it's 12. 1 carried, it will be 13. 1 carried, it will be 16. So it's ₹16,320. तो अब आप देखिए selling price is bigger than this cost price. So we write here, since selling price is greater than cost price, there is profit. And now we can easily find the profit percentage. It's given as profit upon total cost price we will be taking here into 100. Now profit is of how much? It's ₹320. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, और वो हो जाएगा देखिए ₹320. और कितना है टोटल कॉस्ट प्राइस? इट इज ₹16,000 into 100. Okay, now simply cancel these two. Here we have this 0 cancelled, 16 ones are, and here 2 times. So actually it is 2% profit. और यहाँ पर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं बीच में. You can find the profit as selling price minus the cost price. It will be ₹16,320 minus 16,000.
this will be equal to rupees 320. So you can write it in this center part, in the middle, okay? And after this profit we can find the profit percentage. So this is question number 5. Now we move towards question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. शॉप में जितने भी आइटम्स हैं सब पर 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं शॉपकीपर. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? तो यहाँ पर कस्टमर जीन्स परचेज कर रहे हैं जिसका कॉस्ट है मार्क्ड प्राइस रुपीज़ 1450 और साथ ही साथ 2 शर्ट्स भी परचेज कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ईच शर्ट इज़ कॉस्टिंग रुपीज़ 850 और इन पर हमें मिल रहा है 10% डिस्काउंट शॉपकीपर की तरफ से. सो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? हमें ये पता करना है कि जो ये मार्क प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट के बाद कितने रुपए पेमेंट करने होंगे. तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं. यहाँ पर 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं. या तो हम इसका भी 10% इंडिविजुअल निकालें डिस्काउंट, इसका भी 10% इंडिविजुअल डिस्काउंट फाइंड आउट करें और फिर टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करें, या फिर हम पहले ही इन दोनों अमाउंट्स को एड अप कर लेते हैं और फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसका एक बार ही 10% डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं. लेट अस राइट इट. मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, इट इज़ रुपीज़ 1450. देन मार्क प्राइस ऑफ 2 shirts, it will be 2 into rupees 850. This will be equal to rupees 1700. Now total mark price, दोनों ही आइटम्स का कितना हो गया टोटल? It will be 50, 4 and 7 1 and 3150. ये हो गया टोटल मार्क प्राइस. तो अगर डिस्काउंट नहीं है तो इतना पेमेंट करना होगा, लेकिन अभी तो डिस्काउंट भी है. सो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है देखिए, 10%. सो वी राइट डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ व्हाट? ऑफ द मार्क्ड प्राइस, और वो है यहाँ पर रुपीज़ 3150. सो लेट अस फाइंड इट. इट विल बी 10 upon 100 into 3150. Cancel this 0. This will be cancelled and we will have it equal to rupees 315. तो अब ये तो हो गया टोटल अमाउंट जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसका, और ये हो गया टोटल डिस्काउंट इन दोनों आइटम्स का मिलाकर. तो अब कितना पेमेंट करना होगा? ऑब्वियसली इसमें से ये डिस्काउंट माइनस करेंगे. लेट अस राइट इट हियर. अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर, इट विल बी इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस minus the discount, and in this case it is the total marked price. Now total marked price, it is 3150 rupees, 3150 minus the discount of rupees 315. Subtract 10 minus 5, it's 5, 4, 4 minus 1, it's 3, 11 minus 3, it's 8 and 2. So it's rupees 2835. This is the amount to be paid to the shopkeeper. So these were the first 6 questions of exercise 8.2. I hope everything is clear. In the next video, we will be completing this exercise. Goodbye.